यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। एक बार फिर हम मौजूद हैं जामिया हमदर्द में। फॉरेंसिक नर्सिंग और फॉरेंसिक साइंस का आज पहला बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। आबिद सरोश इन एसोसिएट BEB इन एसोसिएट जामिया हमदर्द ये प्रोग्राम चला रहा है, जहां इस कोर्स को करने के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं। 12वीं पास स्टूडेंट भी इसको कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं ये फॉरेंसिक साइंस का जो कोर्स है इसके अंदर स्कोप है, और हम तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बराबर में जो आप मेरे ऐड देख रहे हैं, इस ऐड के अंदर पूरी डिटेल मैंने दे रखी है। आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में, और बातें आप मालूम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस कोर्स की क्लास में। तो अब ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये सेक्शन स्टार्ट हुआ है। जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं उनको बताया जाएगा। ये तमाम जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये तमाम यूज़ होती हैं फॉरेंसिक साइंस के अंदर, और इनके बारे में अभी यहाँ तफसील से डिटेल से बताया जाएगा इस सेक्शन के अंदर। और यहाँ शौकत मुफ्ती साहब मौजूद हैं, ताबिद साहब मौजूद हैं, तमाम एक्सपर्ट मौजूद हैं। Okay, so we have learned about the theoretical aspect of forensic science. After going to the crime scene, we need this crime scene kit. Okay, whatever you're seeing here is a crime scene kit. We have to combine it. We have to take it to the crime scene because it contains everything required on the crime scene. ठीक है? If we have started from here, I have told you about securing of crime scene. This is the tape which needs to be used while securing a crime scene. इसको हम लोग barricading tape भी बोलते हैं। इस पे crime scene पुलिस लिखा होता है। ठीक है? Next we have if we focus on this particular crate, we have certain powders in it. If you can see a powder, we have multiple of powders present in this kit like this. Okay, we have multiple colored powders. Why we need this? Just to enhance and decipher the fingerprints found on the crime scene. I have told you about 3 types of fingerprints on the crime scene. First was latent, second was patent, and third was plastic. So in the case of latent fingerprints, we need these powders to decipher them. Okay, depending upon the surface, the color surface, we need to use the powder accordingly. If in case we are using a black powder, we need that we have to make sure that the fingerprint is present on the black surface, white surface. Okay, तो contrast हमको create करना पड़ता है while developing your fingerprints on the crime scene. ठीक है? Next, if I talk about, we have fingerprint this fingerprint stamp pad. Why we need this? Just to take fingerprints of the suspect if in case we have any. Okay. Next, we have these gloves. You all know why we need gloves. We need to put our gloves on while taking on the fingerprints. Why? Because अगर हमने खुद का fingerprint छोड़ दिया तो हमें problem हो सकती है बाद में. But to avoid this particular mess, what we do is we take samples from the investigating officers as well, just to remove them from the crime. ठीक है? Same thing if we come on this ballistics kit. So everything kit is what we need to give some samples, identification to the particular students who are learning. So we have this gun, it's the air gun. We have bullet cover. Coming to here, if you can see here, this is a scale. This is called ABFO scale. Why we need this? See, on the crime scene we need to take photographs. I have told you. Okay? Photographs are of 3 types. We need to take 3 photographs for every evidence. First is a wide range photograph, second is the mid range, third is the close range. So wide range is what, when you stand here, when you take photograph of the whole crime scene you are observing at that time. Second is mid range. So if in case you have 2 evidences of the crime scene, first is this, second is this, you need to take the evidences here और इनकी फोटोग्राफ कलेक्ट करनी है, दोनों की, कि इनकी आपस में रिलेशनशिप क्या था, डिस्टेंस क्या होगा मे बी. And third is we need to take a close-up photograph of the particular evidence here and here. Now in close photographs, you can't see the particular size of the evidence you have taken photograph of. ठीक है? To estimate the sizing, we need to put this scale here like this on the evidence, just to make sure कि उसका size क्या होगा exactly. क्योंकि immediately वो हमको zoom दिखता है और बड़ा दिखता है वो size. ठीक है? We have this evidence chain of custody. तो अब ये chain of custody क्या होता है कि whatever evidence we have collected from the crime scene, we need to maintain chain of custody. For example, अगर मैंने कोई evidence collect किया है, I need to mention I have collected this particular evidence. Now if I am handling it to someone else, उसका भी नाम लिखेगा कि मैंने ये evidence उसको handle किया. ये तो as you can see it's a hand lens. तो वो क्या करते हो आप, जब हम एनालिसिस करते हैं तो लेबोरेटरी, क्राइम सीन पे भी कर सकते हो,
लेबोरेटरी में भी कर सकते हो। अगर आप क्राइम सीन पे कर रहे हो, इन ऑर्डर टू हैव यू हैव सम प्लास्टिक प्रिंट, तो यू हैव सम पेटेंट प्रिंट, ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो आप उससे इन्हांस कर सकते हो। लाइटिंग भी हैव हियर, तो इन्हांस करके फाइंड आउट कि वो किस कैटेगरी का फिंगरप्रिंट है। टॉर्च भी है हमारे पास, यूवी टॉर्च चाहिए, ठीक है। इस ये क्या होता है कि हमें ना हर चीज़ ऐसे नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन में नहीं दिखती, तो इफ़ यू यूजिंग यूवी लाइट तो उसका प्रिंसिपल होता है कि वो एब्जॉर्ब करता है, फिर वो विजिबल होती है, तो हमें ये लाइटिंग कंडीशन की यूज़ होती है। दिस इज अ फिंगरप्रिंट डिटेक्टर ब्रश। ये कभी कभी कैमल हेयर से बनता है, कभी कभी ऑस्ट्रिच हेयर से भी बनता है। बहुत सॉफ्टेस्ट हेयर होते हैं कैमल हेयर या ऑस्ट्रिच हेयर के, जिससे हम ये ब्रश बनाते हैं। वाई वी नीड दैट? इफ इन केस वी आर यूजिंग ब्लैक पाउडर, यूजिंग दिस पर्टिकुलर पाउडर, दिस ब्रश, हम उसको ब्रशिंग करते हैं पाउडर की। इस ब्रश का काम क्या होता है? पाउडर को उस पर स्प्रिंकल करना। सो दिस इज अ क्राइम सीन किट जिसमें हर चीज़ होती है, ठीक है। सीजर्स भी हैव, इफ इन केस वी फाइंड आउट समथिंग व्हिच नीड सीजर टू कट फ्रॉम, सीजर्स भी होती है इसमें। वी हैव सम बॉटल्स। बॉटल्स किस लिए होती होंगी? प्रिजर्वेशन के लिए। जब भी कोई प्रिजर्वेशन होती है ऑन द क्राइम सीन, वी नीड टू प्रिजर्व इट इन एम्बर कलर बॉटल्स। वो क्या होता है, कुछ आइडिया है किसी को? एक ब्राउन कलर की बॉटल्स हमारे पास क्राइम सीन पे होती है, जिसमें हम लोग अपना प्रिजर्वेशन करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें यूवी रेज आ सकती है, इट कैन एब्जॉर्ब यूवी रेज और वो रिएक्शन हो सकती है। इसमें हम बाकी हमको सॉइल हम इस पर ये क्लॉथ है, इफ यू नीड समथिंग लाइक कुछ भी हमें क्लॉथ का काम है ना, उस क्राइम सीन किट में हर चीज़ तो क्राइम सीन पे इंपॉर्टेंट होती है। वी कैन फाइंड आउट क्राइम सीन। आपके स्केचेस चाहिए, आपको चॉक्स चाहिए, आपको टैग्स चाहिए, आपके ऊपर ये टैगिंग होती है। तो मैंने आपको बताया कि आपको टैगिंग करनी होती है, आप उसको इस तरीके से आप टैगिंग कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 इसमें नंबरिंग ऑलरेडी होती है। आप खुद के टैग्स भी बना सकते हो, इस आपके पास क्राइम सीन किट नहीं है, ये आपकी उसके लिए कन्वीनियंस के लिए। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास क्राइम सीन किट नहीं होती है एंड वी हैव टू गो टू ऑन क्राइम सीन टू इन्वेस्टिगेट ऑन इट। तो हम क्या करते हैं, हम खुद के टैग्स रखते हैं। तो बहुत फैंसी तरीका हो गया, फिर हम खुद के टैग्स बनाते हैं। आई हैव टोल्ड यू कि बाय सर्चिंग योर एविडेंसेस, जब आप सर्चिंग कर रहे हो एविडेंसेस, उस टाइम पे ही आपको टैगिंग करनी पड़ती है सीक्वेंशियली, करेक्ट। सो इफ इन केस अगर हम लोग प्रिंटेड डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, वी कैन दिस टू कैन बी टैम्पर्ड, कि हमने कुछ सेटिंग करके, मान लो पहले क्या था कि इसकी स्पेस की बहुत, अभी तो काम में बहुत ज़्यादा स्पेस था, हमने नेक्स्ट टाइम क्या किया, ऐसे उसको इंसर्ट किया कि उसके बीच में वो प्रिंटिंग हो। लोग करते हैं, वो ऐसे क्राइम्स भी होते हैं, ठीक है। तो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में भी प्रॉब्लम हो जाती है। आगे अगर हम लोग बात करें हैंडरिटन डॉक्यूमेंट की, तो उसमें पक्की बात है, वो तो आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू फैब्रिकेट द हैंडरिटन? मेरा नाम वानी गुप्ता है। मैं एमिटी यूनिवर्सिटी से बीएससी फॉरेंसिक साइंस कर रही हूँ और मैंने जामिया हमदर्द बीबी के फॉरेंसिक नर्सिंग कोर्स के लिए परस्यू किया है। और बेसिकली मैंने यहाँ पे फॉरेंसिक नर्सिंग के बारे में सीखने के लिए, उस फील्ड के प्रैक्टिकल्स, उस फील्ड की नॉलेज लेने के लिए परस्यू किया है, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक नर्सिंग कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। और यहाँ के टीचर्स मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। जबकि आज पहली क्लास थी, उसमें ही काफ़ी कुछ नया सीखा, तो अभी आगे की क्लासेस में आई होप कि और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मैं कह रहा था कि हमें सील से लेके गन से लेके हमें स्मॉल ब्रश तक दिखाई गई फॉरेंसिक लैब की, जिसमें ऑस्ट्रिच हेयर होते हैं या फिर कैमल हेयर होते हैं। तो हमें ये सिखाया गया कि फिंगरप्रिंट कैसे लिफ्ट करते हैं, कैसे हम लिफ्ट कर सकते हैं, किन किन सर्कमस्टेंसेज में हमारे एविडेंसेस मिट जाते हैं, और क्या क्या हम जब एक क्राइम सीन पे प्रेजेंट होते हैं तो हमें क्या क्या एग्जामिन करना चाहिए और किस प्रोसेस से एग्जामिन करना चाहिए उन चीज़ों को। तो जैसे हमें बताया गया कि एक प्रॉपर प्रोसेस हमारी किताबों में मेंशन्ड है, हमें वो फॉलो करना चाहिए। हमें थोड़ा सा आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में बताया गया। हमें ये बताया गया कि क्या क्या आप लायबल हो सकते हैं, किन किन चीज़ों के, अगर आप ये वाली गलती कर देते हैं, जैसे आपने सील नहीं लगाई तो आपका एविडेंस टैम्पर हो सकता है। तो हमें ये सब चीज़ें बताई गई, जैसे ब्लड कैसे उठा सकते हैं और ब्लड को हम कैसे एग्जामिन करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि फिंगरप्रिंट कौन से टाइप का है, हम कौन सी रेज डाल के या कौन सी टॉर्च इस्तेमाल करके फिंगरप्रिंट, लेटेंट फिंगरप्रिंट को उठा सकते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें बताई गई। मेरा नाम वंशिका शर्मा है और मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। मैं महाराजा अग्रसेन से कॉलेज से लॉ पढ़ रही हूँ। आज के कोर्स के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे एक विटनेस जो होता है या विक्टिम जो होता है वो कोर्ट,
हॉस्पिटल और उसके बाद पुलिस स्टेशन किस तरीके से इंटरलिंक्ड रहते हैं, किस तरीके से कौन कैसे काम करता है। आपके हॉस्पिटल के अंदर एमएलसी जब होती है विक्टिम की, तो किस तरीके से वहाँ पे एविडेंसेस लिए जाते हैं, उसके कपड़ों को धोया जा सकता है, नहीं धोया जा सकता, उनका किस तरीके से हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं। क्रिमिनल्स जब कोई भी क्राइम करता है तो वहाँ पे क्राइम सीन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होती है, वहाँ पे क्या क्या एविडेंसेस हम लोग उठा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, टेम्पर किस तरीके से होता है। उधर हमारे फिंगरप्रिंट्स रह जाते हैं कई बार। पुलिस जो ऑफिसर्स होते हैं, आईओ जो होते हैं, वो जब जाते हैं वो किस तरीके से उनको अपनी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे पास लॉ के रिगार्डिंग सीआरपीसी, आईपीसी, हमारे पास सीपीसी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंटरलिंक्ड रहती हैं इन्वेस्टिगेशन। मेरा नाम नाजिश है। मैं एमएससी नर्सिंग कर रही हूँ और मैं ऑलरेडी एमपी गवर्नमेंट एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर रही हूँ। और मैंने फॉरेंसिक नर्सिंग में एडमिशन लिया है बिकॉज हम लोग मेडिको लीगल केसेस डील करते हैं डेली बेसिस पे, जिसमें हमारे पास रेप विक्टिम, ऐसे अटैक, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वी आर थिंकिंग कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ द लॉ, विद के हमें किस तरह से एविडेंस और एमएलसीज़ को सिक्योर करना है और उनको प्रॉपर तरीके से एविडेंस को कलेक्ट करके फॉरेंसिक लैब्स में भेजना है। दैट्स व्हाई आई रजिस्टर्ड इन दिस कोर्स। That is a one of the topmost university in India where we are sitting. Despite Hakim Abdul Hamid Saab is a Unani physician, and in his life he has seen approximate 6 crore patients free. He was so thorough gentleman, he has developed 25 organizations here. Hamdard Laboratories India is one of the topmost. After that, 50 years back, Business and Employment Bureau in 1972, it was registered, and recently we celebrate 50 years golden jubilee of this. Tabish Sarosh Saab, and what we are running here, certificate course in forensic science and forensic nursing. It's a big contribution of Tabish Sarosh Saab. We discussed and started certificate course at a very reasonable cost. मेरे साथ मौजूद हैं बीईबी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी शौकत मुफ्ती साहब। शौकत मुफ्ती साहब जो हैं, ये जितने भी यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ अच्छा काम कर रही है, उसको जामिया तक लाने में सबसे अहम रोल होता है, वो शौकत मुफ्ती साहब का होता है। फॉरेंसिक साइंस का दूसरा बैच स्टार्ट हो गया। शौकत मुफ्ती साहब, अब ये बताइए कि ये कोर्स है, पहला बैच जा चुका है, दूसरे बैच की तैयारी है, अब आगे का क्या प्लान है? ये दरअसल फोरेंसिक साइंस तो हो ही रहा है, उसके बाद हमने इसमें फोरेंसिक नर्सिंग भी जोड़ा है, तो ये अलग कोर्स है। लेकिन कुछ क्लासेस चूँकि कॉमन हैं तो इसलिए इनकी क्लास एक हो रही है, तो हमने दूसरा जो है ये फोरेंसिक नर्सिंग है, डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट कोर्स इन फोरेंसिक नर्सिंग, ये हमने स्टार्ट कर दिया है 3 मंथ्स का। और ये जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उसका एक कॉमन क्लास है और उसके बाद जो और डिफरेंट है उसका डिफरेंट क्लास होगा। तो ये 2 कोर्स है, एक है फोरेंसिक साइंस, एक है सर्टिफिकेट इन फोरेंसिक नर्सिंग, ये दूसरा। तो फोरेंसिक साइंस का ये सेकंड बैच है और फोरेंसिक नर्सिंग का ये फर्स्ट बैच। हम मौजूद हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में, जहां ताबिश सरोश एंड एसोसिएट और बीईबी इन एसोसिएट जामिया हमदर्द बराबर ये काम कर रहे हैं। दूसरा बैच आज स्टार्ट हुआ है फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक नर्स का। ये बहुत अच्छा कोर्स है और हर कोई ये नहीं कर सकता था, वजह थी कोर्स की कीमत बाहर बहुत ज़्यादा है। वहीं ताबिश सरोश इन एसोसिएट और बीईबी इन एसोसिएट जामिया हमदर्द ने ये कोर्स स्टार्ट किया, जिसमें तमाम एक्सपर्ट जो लोग हैं वो मौजूद हैं। आपने देखा कि पूरी किट यहाँ जो थी, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो किट होती है, हमने आपको पूरा सेशन दिखाया। अगर देखा जाए तो कुल मिला के ये जो कोर्स है ये वाकई बहुत शानदार कोर्स है, एक्सपर्ट की निगरानी में ये हो रहा है। और किस तरह से ये ट्रेनिंग दे रहे थे, आपने तमाम स्टूडेंट को सुना, आपको लग रहा होगा कि ये उनकी 10वीं या 12वीं क्लास है, लेकिन ये आज फर्स्ट डे था। ये कोर्स यहाँ जामिया हमदर्द में लगातार हो रहा है। और जो हमने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं स्क्रीन पे, जो हमने बैनर लगाया है,
आप वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और वाकई ये कोर्स ऐसा है कि देश से बेरोज़गारी को ख़त्म करने का जो हकीम अब्दुल हमीद साहब का मिशन, जिसकी बुनियाद 1972 में रखी गई थी, लगातार ये काम कर रहा है देश के लिए। और एक ख़ास रिक्वेस्ट, मेरे चैनल यूनिवर्ल न्यूज़ को आप इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल न्यूज़ ब्यूरो, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली।